الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. الحمد لله رب العالمين. All praises and thanks be to Allah, the Lord of the universe. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. Maliki Yawmiddin, the master of the day of judgment. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. You alone we worship, and you alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those on whom you have bestowed your favors, not the path of those who earned your wrath, and not of those who go astray. صلوات بالمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی، بول کے ذوف طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بول نبی میری دختر، لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں، پائے سکوں قلب مضطر. دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جو اوڑھ کے لیٹے نبی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، گھر میں آئے مولا حسن. بولے یہ ہے خوشبو کیسی، تحت کسا یوں لگتا ہے، تحت کسا یوں لگتا ہے، کرتے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ پہ میرا سلام. گرچہ اجازت مل جائے، تحت کسا آ جائے غلام. بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا
عکس ہو نور عین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا آ پہنچے شہ کرب و بلا. بولے ماں یوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا بولی ملکہ روز جزا. یہ سچ ہے میرے دل کے چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے سخن یہ زہرا کا بول نبی سے شہ بطحا. کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر قصا. بول نبی تو مجھ سے ہے بول نبی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میرے حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پہنچے حسین بھی تحت قصا وقت ابھی کچھ گزرا تھا. فاتح خیبر آ پہنچے بولے مجھے ہے یوں لگتا چادر کے نیچے وہ ہے چادر کے نیچے وہ ہے. ڈھونڈتے ہیں جنہیں میرے نین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے کلام شیر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت قصا. علم و ادب و طہارت کے علم و ادب و طہارت کے گویا ہے مرجل بحرین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے علی پیمبر سے ابر کرم جو ادھر برسے میں بھی آپ کے پاس آؤں شہر کو نسبت ہے در سے. فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کے اور میرے مابین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولا قرآن سے یوں قرآن آؤ اے کل ایمان. ایک ہی نور ہے دونوں کا ایک ہے نبی ایک امام زمان. تحت کے ساتھ تم بھی آؤ تحت کے ساتھ تم بھی آؤ. فاتح خیبر بدر حنین. اللہ محمد علی فاطمہ. آ گئے تحت کے ساتھ جو علی کہنے لگی تب بنت نبی بابا آپ پہ میرا سلام آؤں کیا اندر میں بھی. تب یہ حبیب خدا نے کہا تب یہ حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میری نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. زیر کے ساتھ جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن بولا فرشتوں سے یہ خدا تحت قصا ہے جتنے بدن میں نے بنائی ان کے لیے
میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کی زیب و زین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا خدا سے جبرائیل، اے عالم کے وکیل و کفیل، ان میں چھٹا میں بل جاؤں گر ہو اجازت رب جلیل۔ فرش زمیں پہ جاؤں میں، فرش زمیں پہ جاؤں میں، پا جاؤں قرب سبتین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آئے زمیں پہ جبرائیل، بول نبی سے یہ فخر خلیل، آپ پہ بعد درود سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل۔ اہل کسا کی محبت میں، اہل کسا کی محبت میں خلق کیے اس نے کونین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اس کے بعد ہے فرماتا رزق کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا۔ اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب الحرمین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ تب یہ حبیب خدا نے کہا، پڑھے جو کوئی حدیث قصہ، جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا۔ قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے شیعہ سکھ اور چین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، آج سے ہم یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ سیریز آف تربیت اولاد، تربیت اولاد کی سیریز، کیونکہ آج کے زمانے میں یہ آج کی لائف میں یہ پرابلم نہیں کہ ہم کیسے کمائیں پیسہ، یہ پرابلم بھی نہیں کہ ہم گھر خریدیں یا نہ خریدیں، سب سے بڑا سب سے پرابلم ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کا۔ ہر ماں پریشان، ہر باپ پریشان ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ لیکچر ہے، اور یہ لیکچر کی سیریز ہوں گے، کنٹینیوس سیریز ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تربیت اولاد سٹارٹ کہاں سے ہوگا، فرسٹ سٹیپ کہاں سے ہوگا، میں وہاں سے شروع کروں گی انشاءاللہ۔ آپ تمام کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے بھی گڈ نیوز ہے۔ The one who are our viewers، ان کے لیے سب سے
बड़ा गुड न्यूज ये है कि अगर आप लेक्चर कंटिन्यूस देखते रहोगे तो आपको एक लेक्चर खत्म होगा और दूसरे लेक्चर में ये सवाल होंगे और इमीडिएटली जो जवाब देगा उसके लिए गिफ्ट्स भी होंगे, जो विनर होगा उसके लिए गिफ्ट्स होंगे। अब आज का लेक्चर होगा, आज का लेक्चर तमहीदी होगा, लेकिन आज के लेक्चर का तरबियत औलाद का फर्स्ट स्टेप ये है कि हाउ टू चूज आवर स्पाउस, हम अपने स्पाउस को कैसे चूज करें और किस तरीके के साथ चूज करें, और क्या चीजें हैं जो हमें अपने स्पाउस होने वाले स्पाउस के लिए देखना है, कौन कौन से सिफात हैं जो हमें देखना है। जी ये पहला लेक्चर होगा। ये पहला लेक्चर इसलिए है कि आप आपस में एक पार्टनर को चूज कर रखे हैं, स्पाउस चूज कर रखे हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये लड़की के लिए और लड़के के लिए नहीं है, ये आने वाली औलाद के लिए है। यानी इस्लाम ने कहा कि पहले वहां तक देखो, ये आप चाहे लड़का लड़की को देखना चाहता है या लड़की लड़के को देखना चाहता है, दोनों के लिए ये है कि आप अपनी आने वाली औलाद को अपने जहन में रख के देखना है। जी ये सबसे पहली तरबियत का सबसे पहला ये स्टेप है। देखिए मजलिस है तो मैं बैठकर इत्मीनान से पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे लेक्चर देना है तो इसलिए मैंने कहा कि आई विल मैं अपने आप को इतनी नजदीक हो जाऊं आपसे कि आप मेरी दिल से मैं बात करूंगी और आप दिल से सुनेंगे। जी इंशाल्लाह, खास करके ये उनके लिए ये लेक्चर तो खास कर उनके लिए है जो जवान बच्चियां हैं और जवान बच्चे हैं, जो अभी आगे चल के अपने स्पाउस को, या उन वालिदैन के लिए है जो अपने बेटी के बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो खास ये लेक्चर उन लोग के लिए है। और देखिए लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर अपने बेटी के लिए रिश्ता देखना चाहते हैं और देखा कि कहीं वक्त से रिश्ता नहीं आ रहा है, तो कहा गया है कि आप अपने घर के हॉल में आप सूरे अहज़ाब को जाफरान में लिखा कर आपके हॉल या सिटिंग रूम के कोई भी फ्रेम के पीछे रख दें। इंशाल्लाह रिवायत मासूमीन ये कहते हैं कि अगर कोई बेटी का बाप गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बेटी का रिश्ता बेहतरीन से बेहतरीन आएगा, एक। और दूसरा लड़की के लिए खास कि बहुत टाइम से वालिदैन रिश्ते को ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ तय नहीं हो पाता, तो कहा गया कि हर शबे जुम्मा बेटी सूरे ताहा पढ़े, और वो एक पानी पर पढ़े, पानी में पढ़ कर दम करके वो उस पानी से गुस्ल ले ले एवरी थर्सडे। अब पूछोगे आप अब हम कितने थर्सडे करें, तो यूं तो रिवायत ने कहा 5 थर्सडे भी खत्म नहीं होते, तो आपका इंशाल्लाह आपकी बेटी का रिश्ता आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया, कुछ मसलिहत हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सूरह ताहा। अगर हो सकता है आप कहें कि मेरी बेटी काम करती है, मेरी बेटी कुछ कॉलेज में है, या मेरी बेटी बहुत बिजी है तो उसके लिए वो पढ़ नहीं सकती शब जुम्मा सूरह ताहा, मां पढ़ ले और पानी पे दम कर दे, और वो पानी बेटी को कहें कि वो पानी से वो गुस्ल ले ले। अब वो आप सवाल करेंगे आपा थोड़ा सा पानी लेंगे तो कैसे गुस्ल लेंगे, गुस्ल तो शावर में लेंगे, राइट। तो इतना सा पानी आप लेंगे, वो पानी को आप वॉशरूम में जाकर पहले अपने सर पे डाल लें, यानी अपने खांदे पे आए, अपने जिस्म पर आ जाए, सर से डाल दे, ठीक है। हाँ आप कहेंगे आपा
ना दम करा हुआ पानी है, मैं कैसे वॉशरूम में डालूं, कोई हर्ज नहीं है। नियत है आपकी शादी की और वो गुस्ल का पानी है। वो गुस्ल के पानी से मासूम ने कहा है कि कोई बला मुसीबत या कोई भी अटक हो तो वो खत्म हो जाएगी। मैं डिटेल में नहीं बयान कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई हैव टू स्टार्ट माय लेक्चर एनीवे। अब सबसे पहले मैंने आयत को सरनामा कलाम किया है, वो आयत है। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में सवाल होंगे, तो इसलिए आप इस लेक्चर को बड़े गौर से सुने और हर पॉइंट्स को सुने। और नेक्स्ट गूगल चैट आपका खुला हुआ होगा और सवाल का आप जवाब इमीडिएटली देंगे और टाइम देखा जाएगा। जो पहला जवाब देगा वो टाइम पर देखा जाएगा, तो उसका नाम और एड्रेस लिया जाएगा और उसको वहां भेज दिया जाएगा। कवर मोस्टली पैसे का कवर होगा तो उसे पहुंच जाएगा, कैसी भी किसी भी हाल उसे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तरबियत औलाद का ये सब टाइटल सबसे पहले होगा, टू व्हाट आर द थिंग्स टू व्हाट आर द थिंग्स, यानी थिंग्स तो नहीं बोलूंगी मैं, वो कौन सी सिफात हैं जो अपने स्पाउस में, होने वाले स्पाउस में देखना है। कौन कौन से सिफात हैं जो हमें अपने होने वाले स्पाउस में देखना है, लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए। अब सबसे पहले मैंने कुरान मजीद की आयत को लिया। ये कुरान मजीद की आयत सूरे रोम है, आयत नंबर 21 है। अब ये आयत कह रही है, and of his sign is that he created for you from yourself mates that you may find peace। जी सबसे पहले कहा कि तुम आपस में हमने आपस में जोड़े के अंदर एक पीस रखा है। पीस इत्मीनान, पीस काम, अल्लाहु अकबर, ये हमने रखा है। तो ये आयत कह रही है दोनों के अंदर, यानी सबसे पहले जब भी रिश्ता देख रहे हैं कि लड़का लड़की के अंदर, लड़की लड़के के अंदर, सबसे पहले क्या देखना है। देखिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमें देखना है, जवान लड़कियां हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, तो हम और आप सबसे पहले स्पाउस में ये ढूंढेंगे, ये बच्चे आज के ढूंढे, आज के नहीं जमाने से यही है, ढूंढेंगे तो सबसे पहले खूबसूरती को ढूंढेंगे, बराबर, और दूसरा ढूंढेंगे ये पैसे वाला है या नहीं, बराबर। दो चीज तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। इसकी देखिए सबसे पहले लड़का देखेगा कि लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, और लड़की के जहन में हैंडसम इतना नहीं रहेगा। सबसे पहले वो देखेगी ये कौन सी गाड़ी में आ रहा है, जी ये वो कौन सी गाड़ी लेके आ रहा है, पहले तो ये देखेगी कि नहीं इसके पास कितना पैसा है, ये कौन सी गाड़ी चलाता है और वो कौन सी गाड़ी लेके आएगा मेरे को पिकअप करने के लिए, राइट। देखिए यानी मतलब ये है कि एक देखेंगे ब्यूटी को, एक देखेंगे वेल्थ को। लेकिन रिसालत मां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहु, रिसालत मां कह रहे हैं, इफ यू फाइंड योर स्पाउस, you keep a purpose for beauty or wealth, तो तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे लिए सिर्फ नुकसान ही नुकसान रहेगा, अल्लाहु अकबर। यानी कहा कि अगर तुम सिर्फ पर्पस शादी का, if only the marriage purpose is the beauty and the wealth, definitely there won't be the peace in the marriage। अगर दो सिर्फ ये पर्पस से शादी कर रखे हैं, कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक ब्यूटी को देख के, ऐसे भी दुनिया में है
कि लड़का लड़की को देखा, पहचाना नहीं, नाम भी नहीं जानता, तो ये मम्मी ये कौन है इतनी खूबसूरत लड़की, बस फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। नहीं, इस्लाम ने नहीं कहा है ये फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। कुछ देखा या नहीं देखा, आई लव हर, क्या है बात ये? नहीं कहा, इस्लाम ने ये नहीं कहा। कि इस्लाम ये कह रखा है तुम सबसे पहले तुम्हें कहीं चीजों को देखना है। देखिए, मैरिज इज एन इन्फॉर्म्ड डिस्कशन बिटवीन द फैमिली। पहले तो एक डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन बिटवीन द फैमिलीज। पहले तो एक दूसरे को फैमिली, इसलिए तो कहा पहले तुम्हें हेल्दी फैमिली देखना है, कि देखो कि तुम जिससे कर रखे हो, अपनी बेटी को दे रखे हो, वो हेल्दी फैमिली, वेल्दी नहीं, हेल्दी फैमिली है या नहीं। और फिर कहा कि आप अपनी बेटी को दे रखे हो और तुम बेटा को बेटी ले आ रखे हो, वो फैमिली हेल्दी फैमिली है या नहीं। पहले तो हमें ये देखना है। और दूसरा, देखिए सबसे पहले रिश्ता होने में माँ बाप देखते। खैर माँ बाप भी आजकल बाज औकात लड़का लड़की को चूज कर लिया या लड़की लड़के को चूज कर लिया, अपने मजहब के हैं, पहचान के हैं, और आपस में फैमिलीज को जानते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये फिर मैं लेटर ऑन बयान करूंगी। ओके, फिर आप कहेंगे आपा ने स्ट्रिक्टली ये कह दिया कि फैमिली यानी माँ बाप ही लड़के को देखें, माँ बाप ही लड़की को चूज करें। नहीं, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये माँ बाप एक्सपीरियंस होते हैं, बुजुर्ग हैं, यानी वो जानते हैं, लाइफ को जाना है, लाइफ को देना देखा है, करीब से देखा है लाइफ को। तो उनकी खुद की शादी हो गई, उनके बच्चों के लिए भी रिश्ता देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस देखकर ही चूज करेंगे। चाहे अपने बेटे के लिए चूज करें, चाहे अपनी बेटी के लिए चूज करें, तो वो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस को देखकर, और दूसरा अपने बेटे के जिस तरीके की लाइफ है, जिस तरीके के उसके सिफात हैं, उसको देखकर ही माँ चूज करेगी। नहीं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ये पसंद करेगा, मेरा बेटा ये ना पसंद करेगा, मेरा बेटा ऐसी लड़की ऐसी चीजों को पसंद करेगा। या तो बेटी को देना है तो बाप ये देखेगा, माँ ये देखेगी कि हाँ मैं मेरी लड़की को जानता हूं, मैंने पाला है, मेरे लड़की के सिफात ये हैं, मेरी लड़की के अखलाक ये है, मेरे लड़की के पसंद ये हैं, मेरे लड़की के नापसंदीदा चीज ये है, तो मुझे देना है तो कहाँ देना है, कैसा देना है। मेरी बेटी ऐसे हिजाब करेगी, बाज़ औक़ात मेरी बेटी नहीं करेगी, मेरी बेटी बस हाफ हिजाब करेगी, मेरी बेटी सिर्फ कोट पहनेगी, मेरी बेटी फलां चीजें करेगी, मेरी बेटी जॉब पे जाएगी, मेरी बेटी को जॉब करना पसंद है, मेरी बेटी को नहीं पसंद है, मेरे बेटे को फलां पसंद है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ पेरेंट्स जानते हैं, माँ बाप जानते हैं, बराबर। तो ये माँ बाप सबसे पहले, मैरिज इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट फैमिली कम टुगेदर। ओके, ये वो डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन के बाद फिर आपस में लड़का लड़की, जी अब लड़का और लड़की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये कहा गया द लास्ट एंड फाइनल डिसीजन विल बी गर्ल्स डिसीजन एंड द फाइनल डिसीजन विल बी द बॉयज डिसीजन, कि मैं इससे कर सकता हूं, मैं इससे करूंगा या नहीं करूंगा, लड़की भी मैं इससे करूंगी या नहीं करूंगी। फाइनल डिसीजन होता है लड़का, लड़के पर छोड़ेंगे, राइट। फैमिली कितना भी देख ले, माँ बाप कितना भी देख ले, और लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप कितना भी कैसा भी देख ले, चूज कर ले, लेकिन उसके बाद फाइनल डिसीजन एक रखा जाता है कि बेटे का और बेटी का, राइट। खैर, अब सबसे देखिए, स्पाउस जब चूज करना है आपस में देखेंगे, राइट, देखेंगे, एक दो मीटिंग्स तो करेंगे,
मैं तो ये कहूं, अब ये लेक्चर सिर्फ बॉम्बे की हद तक नहीं है, सिर्फ इंडिया की हद तक नहीं है, ये लेक्चर है ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएगा, पूरे ग्लोब में जाएगा। तो इसके लिए मैं पूरे कंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए मैं ये लेक्चर दे रही हूँ। हर एक कंट्री का एक जो आपस में स्पाउस चूजिंग का तरीका जो होता है उसको मद्देनजर रखकर मैं बयान कर रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि बाज औकात ये होता है माँ चूज करें, बाप चूज करें, तो उसके बाद लड़का लड़की को फोन नंबर्स दिया जाता है, और जब फोन नंबर्स देने के बाद दोनों आपस में थोड़ा 2 मीटिंग करें या बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। बाज़ औक़ात 2 महीने 3 महीने भी बात हो जाती है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये मेरे लिए प्रॉपर है या नहीं, वो डिसाइड करेगा मेरे लिए वो लड़की प्रॉपर है यानी मेरी मैच की है या नहीं। ओके, उससे ज्यादा करने की जरूरत है। कोई कहे कि मैं 1 साल बात करूंगी, मैं 2 साल बात करूंगी, नहीं, फिर इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। 1 साल, इसलिए इस्लाम ने मना किया, इतना लंबा बात तक नहीं कर सकते। और जब आप एक सेका पढ़ने के बाद भी, एक सेका आपने पढ़ लिया महरमदार का और निके का डेट लेने वाले हैं, तो कोशिश करें कि एंगेजमेंट यानी सेगा और निके का डेट में बहुत ज्यादा गैप ना हो। और फिर वो इतना गैप के बाद अगर आप कहे कि नहीं अभी रिश्ता नहीं जम रहा, या 1 साल या 2 साल के बाद आप कहे कि नहीं ये रिश्ता हमारा नहीं जम रहा है, तो फिर वो एक तरीके का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। फिर आप जानते हैं कि ये एक वाइब्स एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, बात करने में, चीट करने में, मेंटली, और उस चीजों में जब एक दूसरे के अंदर वो वाइब्स चले जाते हैं तो फिर वो एक अटैचमेंट हो जाता है। इसलिए कहा लिमिटेड टाइम लो, लिमिटेड टाइम में आप जान सकते हैं। कभी कभी शादी के बाद भी 10-10 साल के बाद भी आपस में शौहर और बीवी जानने में बहुत सारी कमियां रह जाती है। जानना इंसान को ये नहीं कि 1 साल में जान लिया, 2 साल में नहीं, शादी हो के भी कई सालों तक एक दूसरे को जानते ही रहते हैं, एक दूसरे को पहचान पहचान में चली जाती है पूरी जिंदगी। बराबर जिस शादीशुदा माए इस बात को समझेंगे, मेरी इस बात को प्रॉपर समझेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए अब मैं आ जाऊंगी इस चीज के लिए, क्योंकि अब जब सबसे पहले स्पाउस पे हमें क्या देखना है, इसलिए मैंने सूरे रोम आयत नंबर 21 ले ली। देखिए मौलाए कायनात, पहले मैं मौलाए कायनात की हदीस ले लूं। मौलाए कायनात ये फरमाते हैं कि लड़की के खास बाप के लिए कि अगर आप लड़की को दे रहे हो किसी लड़के के लिए, तो वो लड़के में 3 चीजें देखो। एक ये देखो कि उसके पास छत है या नहीं, घर है या नहीं। अगर बॉम्बे के हिसाब से तो हमें पहले देखना है घर है या नहीं, वरना वो लड़का लड़की शादी के बाद घर लेते रहते पूरी उम्र बीत जाती है, इतना एक्सपेंसिव घर है। खैर, अब मैं ये सिर्फ ब्रीफ में बताती हूँ। सबसे पहले छत, छत यानी घर। दूसरा कहा कि वो खाना खिला सकता है या नहीं, प्रॉपर खाना खिला सकता है या नहीं, ये डिटेल में जाऊंगी। फिर तीसरा कहा दीनदार है या नहीं। 3 चीजों को देखो। अब ये बात पर मैं एक्सप्लेन कर दूं, वरना हम इसको मिसयूज कर लेंगे इस जुमले को। छत है या नहीं ये देखो, इसका मतलब ये नहीं कि 3 बेडरूम वाला फ्लैट है या नहीं, 4 बेडरूम वाला फ्लैट है या नहीं, उसके पास बंगलो, अगर बाहर कंट्रीज वाले देखें तो ये बंगलो है या नहीं, नहीं, ये नहीं कहा। ये इतना कहा, या छोटा घर या बड़ा घर या 1 बेडरूम वाला घर, लेकिन सिर्फ इतना देखो छत है या नहीं। जी, बस ये कहा छत है या नहीं। दूसरा ये कहा खिला सकता है या नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये जमाने में कोई ऐसा नहीं है कि भूखा रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तीसरा दीनदार है या नहीं। अगर कोई दीनदार लड़का हो तो आप अपनी बेटी को दे दो, इसलिए दे दो क्योंकि अगर कोई दीनदार लड़का हो तो वो अपनी बेटी पर कभी जुल्म नहीं करेगा। जी, दीनदार है तो वो कभी जुल्म नहीं करेगा। और फिर कहा कि अगर वो दीनदार है तो बिल्कुल अपनी बेटी को इत्मीनान के साथ रखेगा। बस ये तीन चीज को देखना है मौलाए कायनात की हदीस। अब चलिए कि अब मैं चंद हदीसों को इकट्ठा कर जमा करके चंद पॉइंट्स में दे रही हूं कि आपस में एक दूसरे को यानी लड़का लड़की में, लड़की लड़के में क्या देखना है। What are the qualities that we have to see in our spouse, यानी होने वाले स्पाउस में हमें क्या देखना है। सबसे पहले कहा गया, इसलिए मैंने ये कुरान मजीद की आयत को सरनामा कलाम किया। देखिए, पहला लड़का और लड़की देखते हैं तो लड़का देखता है ब्यूटीफुल है या नहीं, लड़की देखती है वेल्दी है या नहीं। कहा ये तो दूरअंदेशी नहीं है जी, ये दूरअंदेशी नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो दूरअंदेशी नहीं है, क्योंकि ब्यूटी कायम तक नहीं रहेगी। और दूसरा, वेल्थ को आना भी है और जाना भी है जी। अब तो कहा गया कि इतना देखो, मैं ये नहीं कहती कि ना देखो, इतना देखो, इसलिए तो मौलाए कायनात ने कहा कि देखो छत है या नहीं, बराबर ने उसमें आ गया कि थोड़ा सा उसके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है ले जाने के लिए, नहीं कि कौन सी गाड़ी बड़ी लेके आ रहा है, नहीं, बराबर। तो हम ये चीज को देख रहे हैं। कहा सबसे पहले देखो कि वो तुम्हें सुकून अता करता है या नहीं, ये फाइंड करो। कुरान की आयत ने कह दिया, फाइंड द पीस इन हिम, फाइंड द पीस इन हर। दोनों में आप फाइंड करो पीस को। पीस अगर, सुकून अगर मिल जाए फिर सब कुछ मिल जाएगा। सुकून के अंदर सब कुछ आ जाएगा। अगर दोनों आपस में एक दूसरे को सुकून, सकीना, सुकून देने वाले होंगे, सकीना ढूंढो, सुकून ढूंढो। अगर सुकून देने वाले होंगे, पैसा भी आ जाएगा। वरना पैसा होकर सुकून ना हो तो मतलब क्या जिंदगी का। और आपके पास बड़ी गाड़ी हो, सुकून ना हो तो मतलब क्या। बहुत बड़ा घर है लेकिन सुकून ना हो, शौहर से बीवी को, बीवी से शौहर को सुकून ना हो तो बच्चों की तरबियत क्या होगी, बच्चों की तरबियत कैसी होगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको ढूंढना है सुकून को। अब शायद आप पूछेंगे कि आपा सुकून की क्वालिटीज क्या है, सुकून के अंदर वो कौन सी चीज आएगी। चलिए मैं बताती हूं। देखिए, सुकून में वो चीजें आ जाएगी कि आपको इन चीजें, देखिए कभी कभी हम कहते हैं बस मुझे शादी करना बिकॉज आई लव हिम, आई लव हर। मैं बोलूं आप खामोश हो जाओ प्लीज, प्लीज खामोश हो जाओ। इंग्लिश में मैं कह सकती थी बट अच्छा नहीं लगेगा लेक्चर में कहना इंग्लिश में। बिल्कुल आप अपनी जबानों को बंद कर लो कि बिकॉज आई लव हर, बिकॉज आई लव हिम, नहीं। अब देखिए पीस कहां मिलता है, जहां सिर्फ आप कहेंगे मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूं और रेस्पेक्ट नहीं है, आपस में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, तो फिर वो लव नहीं रहेगा। बल्कि कहा गया कि बस ये सिर्फ देख रहे हैं कि बस मैं उसे, मोहब्बत तो खुदा की तरफ से है। शादी के बाद, निकाह के बाद खुद वो खुद, आई लव हिम, आई लव हर, वो खुद खुदा निकाह के वक्त डाल देगा। फिर निकाह के बाद आप वो खुद कहेंगे वो वाकई मोहब्बत है, वो वाकई मोहब्बत है।
जानते हो मोहब्बत क्या है? देखिए, मोहब्बत उससे भी हो जाती है जहां रेस्पेक्ट नहीं है, मोहब्बत वहां भी हो जाती है जहां ऑनेस्टी भी नहीं है। कभी हम फ्रेंड्स का ग्रुप है, बस हम मोहब्बत करते हैं उनसे, लेकिन कभी हम देखते हैं कभी चंद फ्रेंड्स के अंदर दो ऐसे जो ऑनेस्टी नहीं है, लेकिन मोहब्बत है, मोहब्बत है। उसने बुलाया, हम चले गए, वो फोन किया, हमने फोन उठा लिया, उसको कोई चीज की जरूरत है हमने दे दिया, क्यों? मोहब्बत है। लेकिन ऑनेस्टी नहीं है, वहां मोहब्बत वहां भी हो सकती है। और कहा गया कि मोहब्बत वहां भी हो सकती है जहां रेस्पेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए आपस में एक दो दोस्त ऐसे ही बिल्कुल आपस में दोनों रेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ मोहब्बत है। तो कहा कि ये कैसी मोहब्बत है? विदाउट पीस, विदाउट पीस। देयर इज जस्ट अ लव बट विदाउट पीस। There is a love but no respect. There is a love but no honesty. There is a love but no trust. तो these love जो होता है, ये मोहब्बत जो होती है, ये मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होगी, लेकिन मोहब्बत में सुकून नहीं है। तो कहा मैं क्या ढूंढूं सुकून में? का ढूंढो आपस में, स्पाउस में, सुकून में कौन सी क्वालिटीज को ढूंढना है? सुकून की क्वालिटीज वो है कि वो ऑनेस्ट है या नहीं। देखिए, जब भी आपस में एक दूसरे स्पाउस मिले और एक दूसरे जान रहे एक दूसरे को, अब जब एक दूसरे को जान रहे, या एंगेजमेंट हो गई या सेगा हो गया, अब वो जानने का पीरियड रहता है ना, आपस में एक दूसरे को जानने का पीरियड, तो उसमें सिर्फ इम्प्रेस करने में वो टाइम खत्म हो जाता है। चाहे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल है, वो निके का 1 साल लिया गया, या 6 महीने लिए गए, या 8 महीने लिए गए, तो एक दूसरे को स्पाउस के अंदर जानना क्या है, कौन सी क्वालिटीज देखना है, वो देखना तो बात की बात रह गया, एक दूसरे को इंप्रेस करने में रह गए। दे आर जस्ट, देखिए, एक दूसरे स्पाउस वाकन लाइफ आपस में निकाह करके गुजारना चाहते हैं, तो फिर वो आपस में ऐसी क्वालिटीज को देखो। दे शुड नॉट पुट अ मास्क ऑन द फेसेस एंड कम टुगेदर टू सी द क्वालिटीज। नो, रिमूव योर फेस मास्क, यानी जो मास्क डाल के हम चंद घंटे के लिए एक स्पाउस का सिलेक्शन करना है, चंद घंटे के लिए हम आए, बात करने के लिए आए, मीटिंग करने के, लड़के से लड़की, लड़की से लड़का, मीटिंग करने के लिए, अच्छा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, मैं वो पहन के आ जाऊंगी, और वो अच्छा आपको मैं कौन सा शर्ट पहनूं तो अच्छा लगेगा आपको। अरे भाई, ये पूरी जिंदगी नहीं रहने वाला है जी। ये चीजें आई नो, ये बचपना है, कभी कभी हो जाता है तो ठीक है, देर इज नो कंप्लेन। अगर कोई कह भी रहा है तो देर इज नो कंप्लेन, ठीक है। लेकिन जो वाकई चीजें देखना है उसको तो जरूर देखो जी। वो चीजें जो देखेंगे वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ, तुम्हारे जोड़े के साथ रहेगा, और उसमें ऐसा होगा कि तुम्हारी लाइफ एक सुकून वाली गुजरेगी, और तुम्हारी आने वाली औलाद, सबसे बड़ी चीज, पहला स्टेप, आने वाली औलाद, क्योंकि आज के जमाने में औलाद की बेहतरीन तरबियत करना बहुत सारे मुश्किलात है। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। वो माँ बाप को पूछो जो टॉडलर्स मॉम, आपके लिए भी लेक्चर है इंशाल्लाह, धीरे धीरे इस सीरीज में आएगा। लेकिन ये चीजें हैं जो अपने बच्चों के लिए, ये माहौल में, इस जमाने में, ये करंट जमाने में, इस माहौल में, ये सोशल मीडिया में, ये बेहया सोशल मीडिया स्क्रीन्स में अपने बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है। तो ये चैलेंजिंग में जब सबसे पहले आप अपने ये पहला स्टेप स्पाउस को देख रहे हैं, तो सुकून देखो, और सुकून में देखो ऑनेस्ट है या नहीं, रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, सच बोलता है या नहीं। बहुत सारी चीजें हैं। आज ये 3 पॉइंट्स आप याद रखें कि ये सुकून में,
सबसे पहले क्या देखना है, हमें सुकून देखना है। ब्यूटी बोनस में आ गया, अगर आ गई ब्यूटी बोनस में, चलो खुश नसीब है कि ब्यूटी वो खुद ब खुद। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह लड़के भी अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं, लड़कियां भी अपने आप को ग्रूम कर लेती है। पहले यूं होता था, शादी करके ले आए, कैसी थी लड़की, बाद में आज देखो तो क्या खूबसूरत हो गई है, क्या उसके मैचिंग ड्रेस, क्या उसके मैचिंग पर्स, बाद में ग्रूमिंग बाद में भी हो जाती है। ये नहीं, क्योंकि मैं मेरी ही मिसाल दे रही हूँ, बिल्कुल मेरी ही मिसाल दे रही हूँ। बिल्कुल मुझे वो होश भी नहीं था कि गोल्ड अगर मैं वो पहनूं, कोई ऐसी चीज जिसमें गोल्ड वर्क है, तो मुझे ये भी होश नहीं था कि गोल्ड के चप्पल पहनना है। कोई भी जूते पहन लेती थी, लेकिन मैं यहां आकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करूं, कितना भी कम है, मुझे अल्लाह ने उस घर में भेजा जहां, जिस घर में मैंने मेरी मदर इन लॉ को कभी नहीं कहा ये मदर, मैं खुद मेरी माँ को कहती थी ये मेरी माँ से बढ़ के है। बहुत लोग कहते हैं कि आपा कभी मदर इन लॉ माँ नहीं बन सकती, लेकिन मेरे लिए माँ बनी मेरी मदर इन लॉ, बिल्कुल माँ बनी। तो ग्रूमिंग तो बाद में भी हो जाती है। तो लड़की की खैर कहा, सबसे पहले हमें देखना है पीस। सेकेंड पॉइंट हमें क्या देखना है, सेकेंड पॉइंट हमें ये देखना है कि अखलाक उसके कैसे हैं, अखलाक बेहतरीन है या नहीं है। जब वो बोलेगा या जब वो बोलेगी तो वो किस तरीके से बोल रही है। कॉमन बात है, कॉमन बात कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे की कॉमन बात हो रही है। वो कॉमन बात भी कैसे लग रही, कैसे अल्फाज है, कैसी क्वालिटीज है और किस तरीके से बोल रही है, बोलने में पॉजिटिवनेस है या नहीं। देखिए बोलने में भी आप बहुत लोगों को पहचान लेंगे। कभी भी किसी के साथ बैठो, उनके अंदर हर टाइम नेगेटिविटी, यूं लगता है कि अगर थोड़ी देर मैं बैठूं तो नेगेटिविटी मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, पड़ोसी जो बैठा है उसके अंदर ट्रांसफर। मोस्ट ऑफ देम ऐसे होते हैं कि कुछ भी बोले, कुछ भी बात करें, अच्छी भी बात हो रही है तो वो नेगेटिविटी उसके अंदर डाल देते हैं। तो आप जरा देखिए आपस में, आप देखिए लड़का जब बात कर रहा है, कॉमन बात है, तो वो कॉमन बात में भी कितनी मिठास है, कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी ऑनेस्टी है, और वो बोलने में आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। और दूसरी बात, बाज़ औक़ात यूं होता है कि लड़का लड़की जब चंद दिनों में, चंद महीने में जो टाइम पर चूज करना होता है, एक दूसरे को क्वालिटीज देखना होता है, तब जो भी बोले उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद वही बोले तो वो अच्छे नहीं लगते। देखिए क्यों, क्योंकि हम वो टाइम पे वी आर जस्ट फ्लाइंग हाई ऑन द स्काईज। या आई नो दैट्स एन गोल्डन पीरियड होता है लड़के के लिए और लड़की के लिए, बट जस्ट वी आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, नो नो, कहा पहले देखो कि वो कैसे बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या उसके अंदर पॉजिटिविटी है या नहीं। जी ये अखलाक उसके अंदर देखना है जी। और तीसरा कहा गया, ये मैं सिर्फ चंद चीजों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, चंद पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंशाल्लाह फिर धीरे धीरे करूंगी। ओके, फर्स्ट पीस, पीस में कौन सी चीज है, दूसरा अखलाक, उसके अंदर अखलाक कैसे हैं, बोलता कैसे है, बात करता कैसे है, और आपको आपके आपके लड़की के माँ बाप को लड़का मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, तो और लड़की जब अब उसके माँ बाप को मिल रही है तो वो कैसे मिल रही है, किस तरीके से, किस अखलाक से, किस तमीज से, किस आदाब से मिल रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कहा कि सपोर्टिंग होना चाहिए दोनों। लाइफ में आगे चल के वो लड़का
लड़की के लिए सपोर्ट कर सकता है या नहीं, ये वो पीरियड में आपको पता चल जाएगा, वो क्वालिटीज में आपको पता चल जाएगा सपोर्टिव है या नहीं। लड़की के लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चंद चीजें लाइफ में ऐसी आती है शादी के बाद, तो हस्बैंड के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। कितनी भी अगर वो लड़की वाइफ सच्ची है, कितनी भी वो है, बास औकात क्योंकि वो ससुराल में जाएगी ना, शी इज गोइंग टू द अदर हाउस, the boy is not coming to the wife's house, he is not going to he will be in his own comfort zone, the boy is always in his home and in his own comfort zone, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क लड़की को पड़ेगा। क्योंकि लड़की को इसलिए पड़ेगा, वो खुद के कंफर्ट जोन को छोड़कर, खुद के घर को छोड़कर उसे चले जाना है ससुराल में। अब जब उसके दूसरे घर में जा रही है तो सबसे पहले उसे जरूरत होती है सपोर्ट की, और सपोर्ट करने वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्टर विल बी हर हस्बैंड। तो वो हस्बैंड के अंदर वो सपोर्ट हो, पहले वो देखना चाहिए लड़की को। और इवन लड़के को भी ये देखना चाहिए कि लड़की कितनी सपोर्टिव है मेरे लिए। खुदा ना करे कभी मैं परेशान हाल हो जाऊं, खुदा ना करे मेरी नौकरी कुछ चले जाए, खुदा ना करे मेरे लिए कुछ हो जाए, खुदा ना करे, तो कितना लड़की मुझे सपोर्ट करेगी या छोड़ के चले जाएगी। देखिए ये तमाम चीजें हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहने वाले, लाइफ लॉन्ग ये चीजें हमारे साथ रहेगी। तो सबसे पहले एक दूसरे स्पाउस जो चूज कर रहे हैं, ये देखें कि वो सपोर्टिव है या नहीं है। और हमें चौथा ये देखना है कि दोनों आपस में देखना है, लड़का दीनदार है या नहीं, लड़की दीनदार है या नहीं। क्योंकि आने वाली औलाद के लिए जो तरबियत देगी, वो तरबियत सबसे पहले ये देगी कि वो आने वाली औलाद पासदाराने इमाम ज़माना बनेंगी। उसके लिए तो बाप दीनदार हो, उसके लिए तो माँ दीनदार हो, उसके लिए तो आने वाली वाइफ दीनदार हो, उसके लिए कि मैं जिससे शादी कर रही हूं, जिस लड़के से, वो दीनदार हो, तो ही जाके औलाद की तरबियत हो सकती है। अच्छा, दीनदार में सिर्फ यही नहीं देख रहे हम कि वो नमाजी है, रोजे। देखिए कभी कभी ये देख के कहेंगे नहीं वो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद में आ रखा है, एक भी माह रमजान का रोजा नहीं छोड़ा। इसके अलावा भी बहुत चीजें देखना। दिस इज द नमाज एंड रोजा, दिस इज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या होगा, इंटरनल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, ये हमें देखना है। दीनदारी उससे कहते हैं। एक्सटर्नल में हो सकता है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हो और झूठ भी बोलता हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हो और जाके कहीं गुनाह भी करके आ रहा हो, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा हो, माह रमजान के रोजे भी रख रहा हो, और इतना गुस्से वाला हो तो उसकी जबान से बदकलामियां निकल रहे हैं, तो ये तो दीनदारी नहीं होगी, ये दीनदारी नहीं होगी। दीनदारी वो होना चाहिए कि वो अंदर से सब कुछ, ये नहीं मैं कह रही हूं परहेजगार सिर्फ आलिम दीन बन जाना चाहिए, नहीं नहीं। अगर एक दीनदार को देखना है तो मौलाए कायनात कह रहे हैं उसे मस्जिद में नहीं देखते, उसे तो बाजारों में देखते हैं कि वो डील अगर बिजनेस की कर रहा है तो कैसे कर रहा है। मस्जिद के बाद, मस्जिद में तो सब परहेजगार है, मस्जिद में तो आ ही रहा है नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद में तो बिजनेस की डीलिंग करने नहीं आ रहा है।
जी, मस्जिद में तो रिश्ता निभाने नहीं आ रहा है, बराबर। रिश्ता तो जिंदगी में निभाना है, सिले रहमी तो जिंदगी में करना है, बिजनेस की डीलिंग तो ऑफिस में करना है। बहुत सारे काम जो होते हैं ना दीनदारी के, वो मस्जिद के बाहर ही होते हैं, मस्जिद के अंदर नहीं होते। मस्जिद के अंदर तो दुआ होती है, मस्जिद के अंदर तो नमाज ही हो रही है। तो मस्जिद में आने वाला वही करेगा जो मस्जिद चाहती है, बराबर वही करेगा। तो आप दीनदार इंसान को पहचानना है तो वहां पहचानो मस्जिद के बाहर, कि उसके अगर पैसे की डीलिंग हो तो कितना ऑनेस्ट है, बोलता है तो कैसे बोलता है, और रिश्तेदारी निभा रहा है तो कैसे निभा रहा है, क्या उसकी फैमिली हेल्दी फैमिली है या नहीं है। पहले हमें ये तमाम चीजें देखना है स्पाउस में। 5 पॉइंट्स को जो देखना है, आज सिर्फ मैं इतना बयान करूंगी कि अगर आपस में आप इन चीजों को देख लेंगे, आपकी जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन होगी और वहां सुकून रहेगा। खैर, सबसे पहले हमें देखना है आपस में एक दूसरे के लिए कि वो सुकून देने वाली है, दूसरा उसके अंदर वो अखलाक है, तीसरा उसके अंदर वो इज शी हैविंग दैट सपोर्टिव नेचर, वो नेचर है, सपोर्ट करेगी ये मुझे, और ये देखना है कि वो दीनदार है या नहीं। ये चंद चीजों को हमें देखना है, जिससे मौलाए कायनात कह रहे हैं कि जब ये चंद चीजों को आप देख लेते हो और फिर ये क्वालिटीज को आप देखते हो, ये बेहतरीन क्वालिटीज को आप देखते हो, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जिंदगी कामयाब होगी और आने वाली औलाद की तरबियत बेहतरीन से बेहतरीन होगी। औलाद की तरबियत तो करबला वालों ने हम और आपको बताया है। करबला वाले छोटे छोटे बच्चे, जो मैं अब पूरे मसाइब नहीं पढ़ रही, बस 2 जुमले बयान करना चाहती हूँ। करबला में जानते हो बच्चे कितने छोटे थे, कहा तलवारों को अपनी कमर से बांध देते थे, वो तलवारें जमीन से लटकती थी, और जाकर मौला आका हुसैन से कहते थे, आका आप कब इजाजत देंगे हमें। तो ये बच्चों का ये कहना, ये माओं के दूध का असर है। बच्चों का ये करबला में मौला आका हुसैन अलैहिस्सलाम को कहना, जो कि हमारे आने वाली जनरेशन इमाम जमाना से कहेगी, हम उम्मीद रखते हैं कि वो कहेगी, कहने के लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत की जरूरत है। और ये बच्चे, और हजरत अली असगर का झूले से गिर कर ये कहना कि आका ये छोटा सिपाही भी हाजिर है, ये माँ के दूध का असर है, माँ की तरबियत का असर है, वालिदैन की तरबियत का असर है। सिर्फ माँ नहीं, वालिदैन की तरबियत का असर है। बस अजीजान मोहतरम, उसी हजरत अली असगर का वास्ता खुदावंद आलम हम और आपके तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर दे। खुदा, जितनी माएं बैठी हैं यहाँ, जितनी माएं इस महफिल को सुन रही हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुदा उनकी तमाम तमन्ना को बरलाए। परवरदिगार, जो माएं अपनी औलाद के सहरे देखने की तमन्ना रखते हैं, खुदा उन्हें उनके औलाद के सहरे देखना नसीब करे। इलाही आमीन। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, आंसर के लिए गूगल चार्ट खुला रहेगा, जो जल्दी देगा उसके लिए वो विनर होगा, और उसके लिए प्राइजेस होंगे इंशाल्लाह, मोस्टली कैश में होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो प्राइजेस मिलेंगे। और आप ये लिंक को शेयर करें, और इंशाल्लाह हमारी इस खतीजतुल कुबरा एकेडमी के लिए आप सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, मैं सब्सक्राइब ये कॉमन सोशल मीडिया में बोलते हैं उसके लिए नहीं बोल रही, बिल्कुल उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खतीजतुल कुबरा एकेडमी के प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजर जो हैं, जो शाहीन मोहतरमा शाहीन मर्चेंट है, खुदा ने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिया है कि
کہ انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سبسکرائب کریں. صرف میں کہہ رہی ہوں سبسکرائب کر کے لنک کو شیئر کریں تاکہ یہ علم آگے بڑھے اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آنے والے پاسدار سب سے زیادہ بن جائیں، کثرت کے ساتھ ہو انشاءاللہ. الہی آمین. خدا ہم اور آپ کو اگر موت آ جائے ہم اور آپ کے امام کے ظہور سے پہلے تو انشاءاللہ خدا ہمیں قبر سے اٹھا کر امام زمانہ کی زیارت ہمیں نصیب کریں. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام
السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته